सी इफ यू हैड टेकन साइंस और प्लानिंग टू टेक साइंस, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है 11 का, 10 का रिजल्ट आ चुका है मोरलेस सभी बोर्ड्स का. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू certain things which you should keep in mind, ठीक है. So first thing we will share the subject combination, obviously that's the most important thing. Second is schooling. Yes, schooling is a topic, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए है, ठीक है. Now next is for books, ठीक है, the most important thing, what are the books you should follow. ना एनसीईआरटी तो सबको पता है भाई, ठीक है, सबको पता है एनसीईआरटी, ठीक है, बट एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है बेटा, ठीक है. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Now for the subject combination, see I am suggesting you three combinations, ठीक है. You will have multiple combinations if you go school to school, ठीक है, but as per me these three combinations are the most standard and students should choose these three only, ठीक है. Now see the very first combination is PCM. In PCM what subjects you will have? English, then a second language subject will be there, Hindi or Bengali, whatever mother tongue you are having, तुम्हारा जो भी mother tongue है वो है, ठीक है. Apart from that, if you don't want to take your mother tongue, which you should not do, ठीक है, why I will explain it to you. Elective subjects like yoga या physical education you can take, ठीक है, physical education you can take. Okay, next physics, P माने physics, so C माने chemistry. In chemistry you will not have single chemistry, ठीक है, you will have physical, ठीक है, you will have inorganic and you will have organic, ठीक है. ऑल एग्जाम एक साथ ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, एग्जाम एक साथ होगा, बट 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विल स्टडी, ठीक है. नाउ मैथ्स, तो मैथमेटिक्स विल बी देयर, ठीक है. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यू कैन टेक कंप्यूटर साइंस, यू नीड, इट इज कंपल्सरी, ठीक है, सो ये लेना ही पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस और एनी अदर फ्रॉम द लिस्ट, बट आई सी कंप्यूटर साइंस एज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है. चलो नेक्स्ट इज पीसीबी. पीसीबी में क्या है? इंग्लिश, second language or elective वही same, yoga या PE whatever. Next physics, chemistry and you have your biology, ठीक है. Now optional subjects you can choose either nutrition or psychology or any other thing, ठीक है. Psychology also you can choose, PCHY psychology you can choose, ठीक है. Both these subjects are good, ठीक है. Now next for PCMB, physics, chemistry, mathematics and biology. Now see for this combination, here same, these two will be same, but optional subject you are getting biology, ठीक है. माने this combination is specifically for those students who are good in maths, ठीक है, good in maths and want to study biology, बायोलॉजी रेयर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड इसीलिए ये भी स्ट्रीम भी रेयर होता है, ठीक है. सो नाउ सी फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम, हु विल चूज पीसीएम. पीसीएम चूज करो वही स्टूडेंट जिसका एम है इंजीनियरिंग लाइन में जाने का, मैंने कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड कुछ नहीं करना है, ठीक है. मैंने आइदर यू सिट फॉर जेई और यू appear for NDA examination or any other examination, or you want to go for physics honors, chemistry honors, then you can choose for go for this PCM वाला line, ठीक है, statistics honors in future, ठीक है. So go for PCM, ठीक है, no worries, ठीक है. Now if you are going for PCB, then you want to stick to the bio वाला line, ठीक है. bio वाला line माने हो गया BSc biochemistry, BSc biochemistry, हाँ, BSc BTech in biotechnology, ठीक है, या फिर MBBS NEET वाला जो होता है, NEET entrance examination, those who are going to sit for NEET will prefer this stream, ठीक है, prefer this stream, ठीक है. नाउ फॉर पीसीएमबी माने जो लोग सेफ साइड में रहना चाहते हैं, मैंने दोनों देगा, ठीक है, मैंने नीट भी देंगे और जेई भी, ठीक है, नीट भी देंगे, जेई भी, ठीक है. बट फॉर द थर्ड कॉम्बिनेशन इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर चूजिंग दिस थर्ड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट जज योरसेल्फ, ठीक है. Tell yourself कि whether you are capable to digest this mathematics and biology together, because both of them are huge subjects, ठीक है, huge subjects, but अच्छा ही करोगे अगर if you are dedicated, then you will do good in this, ठीक है. I personally belong to this combination, I had this combination in my class 11 and 12, ठीक है, तो हमको तो अच्छा ही मिला था, ठीक है. So इसीलिए these three combinations are there. Don't go for any other new combinations, ठीक है, statistics on all that, don't complicate, ठीक है. So stick to these three combinations. Ask the school whether they are providing these three combinations or not. If not, then go for any other school, ठीक है. Okay, चलो next we come to schooling, ठीक है. नाउ देखो स्टूडेंट्स, स्कूलिंग में क्या है कि पहले में क्या होता था ना, पहले में यू कैन कंसीडर स्कूलिंग की एक ही स्कूल जाना है, स्कूल आना है, ठीक है. बट इधर अब क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, देयर आर सर्टेन स्कूल्स विच अलाउ स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम फ्रॉम माने विदाउट अटेंडिंग क्लास, ठीक है. दे विल नॉट हैव एनी अटेंडेंस प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, ठीक है. दे विल जस्ट गो एंड सिट फॉर द एग्जाम, ठीक है, एंड दे विल गेट पास, ठीक है. दैट स्कूल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है. बट
to me, if you are asking me for suggesting you what type of schooling you should look for, so for me that normal school, ठीक है, normal type of schooling माने जिस schooling से तुम्हारे मम्मी पापा, जैसे schooling से तुम्हारे मम्मी पापा पास हुए थे वैसा schooling, ठीक है, माने स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ाई करो, ठीक है, स्कूल में जाके पढ़ाई करो, घर आओ, फिर से पढ़ो, नेक्स्ट डे फिर से स्कूल जाओ, ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ स्कूलिंग. व्हाई? बिकॉज देखो ये क्लास 11-12 ना सिर्फ नीट और जेई देने के लिए नहीं है, ठीक है, दीज आर द गोल्डन phase of your life, ठीक है, this will not come back again, ठीक है, this time will not come back again, ठीक है, so be very केयरफुल, ठीक है. नाउ इट्स अप टू यू एंड योर पेरेंट्स, इफ यू थिंक कि नहीं सर हम तो डेडिकेटेड वे से नीट और जेई का प्रिपरेशन करेंगे, सो गो फॉर दैट ड्रॉप वाला, क्या बोलते हैं उसको हमें पता नहीं, बट आई पर्सनली विल रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स कि गो फॉर नॉर्मल स्कूलिंग, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल स्कूलिंग में जाओगे ना तो यू विल हैव दैट माने एम इन योर लाइफ, माने एम, बहुत अच्छा मोटिवेटेड रहोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, नहीं तो वही एक रूम में बैठ के एसी में लेट के पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे, रिवाइज भी नहीं करोगे, तो इससे रिजल्ट खराब होता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट मूविंग टू द बुक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, द बुक्स ऑफ फॉर क्लास 11. ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बुक्स फॉर क्लास 11, ठीक है. See, what I personally had seen, ठीक है, students coming in the month of December or January and telling कि sir books तो NCERT, but yes NCERT is sufficient but not sufficient in certain chapters or certain topics, ठीक है, so you need to have some additional books, ठीक है. So now coming, see, your school will tell you कि because they are CBSE और ISC school, तो छोड़ दो ISC school, they will prescribe their own books, ठीक है, for their commercial purpose, वो हम नहीं बोल रहे, but CBSE schools they will tell you NCERT, only NCERT, but I am telling you NCERT is not enough, ठीक है. So देखो इधर, first for physics, ठीक है, NCERT तो है, NCERT प्राइमरी बुक NCERT, ठीक है, but apart from that you need to buy SL Arora for class 11 CBSE, और if you are from ISC, so Newton physics for class 11, ठीक है, this is a must, ठीक है, because without that you will not pass in physics, ठीक है. अब ट्रस्ट में फिजिक्स में पास करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एनसीईआरटी में क्या है ना, डायरेक्ट कुछ लॉज नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, दे हैव एक्सप्लेन द थिंग. सुरेश इज थ्रोइंग द बॉल, इट इज गोइंग इन ए प्रोजेक्टाइल, बट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, why it is taking place, what will be the cross product, dot product, they are not telling that, ठीक है. So be very careful, ठीक है. So you should choose SL Arora, it is my recommendation, ठीक है, for class 11, and Newton physics for class 11 for ISC boards, ठीक है. Now for chemistry NCERT तो again, ठीक है. Now ABC chemistry for class 11 CBSE में, and Newton में Newton chemistry for class 11 for ISC वाले, ठीक है. Now एक बात, in chemistry you will have, as I said, you will have 3 branches, ठीक है. एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, you will have your inorganic, and you will have your organic. Now listen very carefully, or physical, inorganic and organic, ठीक है. For physical chemistry you will need these 2 books, either of this book, ठीक है. But for inorganic and organic, please don't read anything outside NCERT, that will be useless, ठीक है, यूजलेस होगा. वाई? फिर सर आपने फिजिकल के लिए क्यों बोले? बिकॉज फिजिकल के लिए इसीलिए बोले क्योंकि फिजिकल में लॉज है, ठीक है, लॉज है फिजिकल में, माने बोर्स थ्योरी, दैट प्लैंक्स थ्योरी, दैट लॉज आर देयर, दैट लॉज यू विल गेट इट इन दीज 2 बुक्स, नॉट इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में है बट वो ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट दीज 2 बुक्स विल हैव न्यूमरस क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम दिस फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है. एंड नाउ again organic, for organic and inorganic I am repeating, please stick to NCERT, ठीक है. now coming to biology, चलो biology में NCERT मैया की जय हो, ठीक है, nothing else, ठीक है, नो स्टफ, ठीक है, कोई भी मटेरियल नहीं. अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने एकदम भर के तुमको एक ये दिया है बस्ता करके, वो NCERT क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूल दिया है, बायोलॉजी का मॉड्यूल मत पढ़ो, ठीक है, प्लीज, आई एम टेलिंग यू, बायोलॉजी का मॉड्यूल मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो सिर्फ. इस बार नीट में क्या हुआ है, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं देखो कोचिंग वाले सही थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आए थे, बट भैया रुको, सुनो बात को. 90 क्वेश्चंस आता है नीट में, क्या है ना, 90 क्वेश्चंस आता है नीट में, 90 क्वेश्चंस आता है बायोलॉजी का, ठीक है. 90 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी था. रिपीटिंग वन सेकंड, एनसीईआरटी में से 85 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम कट पेस्ट एनसीईआरटी था, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी था. तो तुम लॉजिक लगाओ, तुम डॉक्टर होने वाले हो, तो ये लॉजिक बनता है क्या 5 क्वेश्चंस के लिए तुम बाकी इतना वास्ट है बायोलॉजी, सब पढ़ लो बायोलॉजी का, नहीं ना, तो क्यों जाओगे, ठीक है. सो स्टिक टू एनसीईआरटी, ठीक है. चलो नेक्स्ट मैथमेटिक्स वाले, एनसीईआरटी है
बॉस, ठीक है, एनसीईआरटी इज द बॉस, ठीक है, फॉर जेई का पेपर एनालिसिस करो खुद से, यू विल फाइंड। वो जो वर्कआउट एग्जाम्पल है ना जो तुम छोड़ के जाते हो, उधर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, लास्ट ईयर आया था। क्वेश्चन का नाम था अरिथमेटिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, डायरेक्ट कट कॉपी आया था, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू डू एनसीईआरटी, ठीक है, फर्स्ट एनसीईआरटी देन गो फॉर एनी अदर। नाउ सी आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, हाँ, यू नीड टू डू आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, ठीक है, ये कंपलसरी है। मैथ ले रहे हो ना तो बायोलॉजी तो लोगे या नहीं लोगे वो तुम पे है, ठीक है, बट मैथ्स लोगे तो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आइदर ऑफ दिस एक बुक को कंप्लीट करके जाना है 11 में, ठीक है। नेक्स्ट, और आईएससी वाले पता ही होगा तुमको, मैथ्स माने क्या, हाँ, बचपन से करके आ रहे हो, एमएल अग्रवाल जिंदाबाद। सो एमएल अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, ठीक है। सो तुम्हारे लिए एमएल अग्रवाल काफी है। एनसीईआरटी यू कैन लुक, अच्छा, फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सी आईएससी स्टूडेंट ना बहुत बहुत मैंने क्या बोल इनोसेंट होते, बिकॉज दे हैड टू स्टडी ह्यूज, बिकॉज एनसीईआरटी भरना पड़ेगा, नीट दोगे या फिर जेई दोगे, और तुमको तो अपना बुक्स तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आईएससी वाले एनसीईआरटी तुम्हारे लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। डोंट थिंक कि वो सीबीएसई वाले, आईएससी वालों का एटीट्यूड होता है, अरे एनसीईआरटी हम क्यों पढ़े, एनसीईआरटी तो हम लोगों का है ही नहीं, बट नो बेटा, एनसीईआरटी तुम लोगों का ही है। जेई या फिर नीट या एनडीए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तुम्हारे वो आईएससी वाले बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। आईएससी वाले बुक या फिर अदर बुक क्यों पढ़ोगे, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुमको अदर बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, एक एंडिंग में एक बात हम बोल देते तुम लोगों को, प्लीज इफ यू आर टेकिंग साइंस ना, इट मीन्स दैट यू फील दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक साइंस, ठीक है। साइंस कोई एक आम माने एक ऑर्डिनरी लाइन, ऑर्डिनरी स्ट्रीम नहीं होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम ऑर्डिनरी नहीं होता है, बट साइंस स्पेसिफिकली, ठीक है, इसमें बहुत सारा कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। सो बी कमिटेड टू योरसेल्फ, ठीक है। तुम्हारा क्लास 10 हो सकता है बहुत खराब हो, ठीक है, 60% नंबर आ रहा है, 65% नंबर आ रहा है, ठीक है, यू एक्सपेक्टेड अ ह्यूज बूस्ट इन नंबर, यू एक्सपेक्टेड अ ह्यूज नंबर, ठीक है, तुम एक्सपेक्ट किया 85% आएगा, बट आ गया 65%, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ओके। बट कमिट टू योरसेल्फ कि जब क्लास 12 का रिजल्ट आएगा, 12 का रिजल्ट जब आएगा, तब वो दिन तुम लोगों का होगा, ठीक है। सो कमिट टू योरसेल्फ, आई वांट टू गेट 90%, ठीक है, इन क्लास 12, ठीक है। डोंट कमिट लाइक दिस कि हमको तो पहले 90% भी लेंगे और एम्स में भी जाएंगे, जा सकते हो, इफ यू आर टैलेंटेड यू कैन गो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो कमिट वन थिंग फर्स्ट, ठीक है, कि हमको क्लास 12 में हमको एम्स मिले ना मिले, आईआईटी जेई एडवांस मिले ना मिले, हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चाहिए, 90% इन बोर्ड्स, ठीक है, दैट इज अ कंपल्सन, बिकॉज तुम्हारा वो उधर नंबर कम हो गया था ना क्लास 10 में, तो उसका भी तो मेकअप करना है, ठीक है। सो 15% नंबर लेस हुआ था 80% से, सो 15% नंबर ज्यादा लेके आना है, ठीक है। सो 90% अराउंड ही सोचो, ठीक है। तो कमिट टू योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू थिंक कि चलो ठीक है 80% आ जाए तो सही है, बहुत डिफिकल्ट है ये है, ठीक है, तो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। बी कमिटेड टू योर वट एवर यू डिसाइड, ठीक है। नाउ एक और थिंग, कभी हार मत मानना, ठीक है, बिकॉज यू आर टेकिंग साइंस ना, तो यू आर चूजिंग द टफेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। यस, कोई कुछ भी बोले, साइंस डिफिकल्ट है, ठीक है, सबका हिम्मत नहीं होता साइंस लेने के लिए, ठीक है। तुमने लिया है ना साइंस, तो उधर ही तुम जीत गए, ठीक है। सो नाउ यू आर टेकन साइंस ना, सो कमिट टू योरसेल्फ, ठीक है। फाइट द जर्नी, ठीक है, ट्रैवल द जर्नी, अच्छे से ट्रैवल करो जानी को जियो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, ठीक है। 11 वालों तुम्हारे लिए हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इफ यू वांट सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो आगे पहले अगर कोई भी वीडियो आए तो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।